Welcome to another video in our Indian polity series based on M. Lakshmikant book. Today we are tackling the concept of constitution itself, a fundamental topic that sets the stage for understanding the entire political structure of India. We will break down what a constitution is, संविधान क्या है. We will break down संविधान क्या है, why it matters, उसकी क्या ज़रूरत है, and how it serves as the backbone of governance in any country, especially in the diverse democracy like India. Whether you are preparing for any exams or simply looking to enhance your knowledge, this video will give you a solid grasp of constitutional concept. So let's dive in it. So this is the constitution is derived, कहाँ से डिराइव हुआ है. इसका मतलब ये होता है ना, डिराइव हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट से, जो कि लैटिन वर्ड है. इसका मतलब होता है टू इस्टेब्लिश और टू सेटअप. इन द प्रेजेंट सेंस द कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर्स किया गया इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल which specify the organizational working of the government and the relationship between the government and the people in terms of their rights and duty. The constitutional is various describe, उस constitution को अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया कि फंडामेंटल है, सुप्रीम है, बेसिक्स लॉ ऑफ कंट्री, और एक तरह से इसको गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, जो कि रूल्स ऑफ द स्टेट होता है, और इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी भी बोला जाता है, एंड ग्राउंड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री भी इसको बोला जाता है. ओके, कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन किए अलग अलग तरीके से. जैसे कि ग्लिक्रिस्ट साहब ने बोला था, द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ दैट बॉडी ऑफ रूल्स और लॉ which determine the organization of government. Okay, so and the distribution of power to the various organs of government and the general principle on which this power are to be exercised. Okay, उसके बाद जैटल ने बोला था, the fundamental principle that determine the form of a state are called its constitution. Okay, this includes the method of which the state is organized, the distribution of its sovereign power among the various organs of government, the scope and manner of exercise of government function, and the relation of the government to people over whom its authorities exercise. Okay, एक वेयर स्कॉलर थे, उन्होंने बोला था, the constitution describes the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government. Okay, एक तरीके का सेट ऑफ लॉ है ना, collection of rules. Then Wade and Phillips, a constitution is a document having a special legal sanctity which sets out the framework and the principal functions of the organs of the government of a state and declare the principle governing the operation of these organs. Okay, उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे. तो एक स्कॉलर थे इलियट बल्मर, उन्होंने अच्छे तरीके से फंक्शंस को इसको एक्सप्लेन किया था 7-8 पॉइंट्स में. ओके, तो उनमें से उन्होंने फर्स्ट बोला था, इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी. किसी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का बाउंड्री को डिफाइन करना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन करेगा. ओके, एंड इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड द अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी. एक तो उसका बाउंड्री, दूसरा उसका उस पॉलिटिकल कम्युनिटी का नेचर एंड अथॉरिटी कहाँ से डिफाइन होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइन होगा. चलिए, आपने पॉलिटिकल कम्युनिटी की तो बात कर ली, अब नेशनल कम्युनिटी की उन्होंने बोला कि इट कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज़ ऑफ नेशनल कम्युनिटी. ओके, नेशनल कम्युनिटी की उन्होंने बात कर ली. उसके बाद इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन. किसी भी सिटीजन का राइट क्या है, उसका ड्यूटी क्या है, उसे भी डिफाइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में. उसके बाद इट कैन एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी. यानी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन जो होता है उसका कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करता है, रेगुलेट करता है. इट कैन डिवाइड और शेयर पावर बिटवीन different layer of government or sub-state communities. It can declare the official religious identity of state and demarcate relationship between sacred and secular authorities. Okay, and it can also commit states to particular social, economical और development goals. Okay, so ये था हमारा दो चीज़ हमने किया. एक तो बेसिक्स मीनिंग्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरा उसका फंक्शंस क्या है. ओके, फंक्शन हमने डिफाइन किया, किसके बेस पे किया, एक एलियट बर्नर हमारे एक स्कॉलर थे. ओके, उसके बाद कम्स क्वालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसे भी डिफरेंट स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है. तो किस तरीके से मतलब उसका होता है,
तो उसको एक्सप्लेन किया गया सभी को, अगर कंपाइल करें तो उन्होंने बोला कि एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए वो ब्रीवेटी होना चाहिए, तो एक प्रिसाइज होना चाहिए, शुड बी प्रिसाइज एंड शुड नॉट कंटेन अनवांटेड प्रोविज़न, कोई किसी भी तरह का अनवांटेड प्रोविज़न नहीं होना चाहिए थे। ओके, अगर उन्होंने ये भी बोला कि अगर लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसमें टू मैनी क्रिएट कन्फ्यूजन होगा, उसमें अगर जितना ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा उसमें कन्फ्यूज़न होगा उसको क्लाउज को इंटरप्रेट करने में। ओके, देन बोला तो उन्होंने कि क्लैरिटी होना चाहिए संविधान में, इट शुड स्पेसिफाई इट्स प्रोविज़न इन क्लियर टर्म्स। ओके, इट कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वुड रिड्यूस द डिग्री ऑफ इट्स अंडरस्टैंडिंग। देन कम डेफिनेटेंस, तो एक डिफिनेट मीनिंग होना चाहिए इट फॉर इट्स प्रोविज़न, जो भी प्रोविज़न आपने दिया है उसमें उसका एक डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए। जैसे अगर उसके एम्बिगियस और डिफरेंट मीनिंग आ जाएगा, तो अलग अलग मीनिंग्स अगर उसमें आने लग गया तो उससे फिर क्या होगा ना, तो फिर वही हो जाएगा, इंक्रीज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जजेस इन द इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इसका डेफिनेट मीनिंग होना ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए, जितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा इतना ज़्यादा रिड्यूस होगा, दिस विल रिड्यूस द स्कोप फॉर कंट्रोवर्सीज एंड लिटिगेशन, जितना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिएगा कि पूरी तरीके से हम एक्सप्लेन किया हुआ है उसको ज़्यादा लिटिगेट करना हो गया, कंट्रोवर्सी होगा उसको तो कम हो जाएगा। उसका सूटेबिलिटी, ये सूटेबल होना चाहिए टू द हिस्टोरिकल सोशियो कल्चर इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द नेशन। ओके, सूटेबल होना चाहिए उसका, ये स्टेबल होना चाहिए, इट शुड फैसिलिटेट political stability and should not allow easy tampering. This would strengthen the obedience of the citizens to the constitution. Then come adaptability होना चाहिए, टाइम टू टाइम इसको इवॉल्व कर, जैसे कि अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग सिचुएशन, जैसे सिचुएशन बदल रहा है उसमें अडॉप्ट, जैसे कि हमारा संविधान है अभी तक चल रहा है, इतने साल हो गए, पर उसमें कुछ ऐसे अगर सिचुएशन अगर होता है तो हम उसको चेंज भी करते हैं, बट स्टिल इट इज़ एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। नाउ हमने क्वालिटी देख लिया, अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। डिफरेंट टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया कि किस तरीके से संविधान कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट होता है इवॉल्व एंड इनएक्टेड। इवॉल्व मतलब हुआ कि टाइम टू टाइम इवॉल्व हो रहा है, वो लिखा हुआ कहीं पे नहीं है, जैसे ज़रूरत पड़ी हमने बचा ये ज़रूरत पड़ी हम लिख दिया। इसका एग्जाम्पल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, हर दिन उसमें अलग हो कुछ अगर उनको लग रहा है हाँ ये वाला चीज़ संविधान जोड़ना चाहो तो लिख देते हैं, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि पहले से रूल्स लिखा हुआ नहीं है, जो रूल्स आया ज़रूरत पड़ा अच्छा ये रूल्स बन सकता है तो उन्होंने नोट कर दिया। ओके, एक होता है इनएक्टेड, मतलब कि इनएक्टेड मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से किसी बुक्स या डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन, कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और अमेरिका और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसका गुड एग्जाम्पल्स है। ब्रिटिश वाला किसका एग्जाम्पल है, इवॉल्व का एग्जाम्पल कौन है, ब्रिटिश, और इनएक्टेड का एग्जाम्पल कौन है, इंडिया एंड यूएसए। देन कम्स रिटन एंड अनरिटन, सेम जो ऊपर का है ना इवॉल्व इनएक्टेड, सेम मान लीजिए रिटन एंड अनरिटन भी है, जो इवॉल्व होगा वो तो लिखा हुआ नहीं है ना, वो तो लिखाते जाएगा एज ए टाइम टू टाइम, बट है ना वो मतलब अनरिटन है, वो जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सब लिखा हुआ है, जैसे कि यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस एंड इंडिया सब द गुड एग्जांपल ऑफ दिस डेटा, मतलब ये आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। ओके, देन इवॉल्व में आता है यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल, ये सब इवॉल्व है, अनरिटन है, ये लिखा हुआ ही नहीं है ना, नहीं लिखा हुआ है यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल। देन कम्स रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि यूके न्यूजीलैंड का है। फ्लेक्सिबल में क्या हुआ कि मतलब फ्लेक्सिबल हो सकता है कि एज ए फ्लेक्सिबल है, मतलब ये चेंज हो सकता है, इसको जब मर्जी किया बदल सकते हैं, वो होता है फ्लेक्सिबल। ओके, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिजिड में होता है कि पूरी जो लिखा हुआ उसी को मानना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल यूके एंड न्यूजीलैंड, और रिजिड के एग्जाम्पल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्ज़रलैंड। ओके, याद रखें रिजिड कहाँ, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, और फ्लेक्सिबल का एग्जाम्पल यूके, न्यूजीलैंड। ना हमारा बात होता है कि इंडिया का संविधान क्या है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। इंडिया का फ्लेक्सिबल ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, यह एक तरीका मिक्सर ऑफ बोथ है। ओके, तो कभी जरूरत पर रिजिड भी है, कभी वैसे हुआ तो उसको फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फेडरल एंड यूनिटी नेचर। फेडरल एंड यूनिटी जो होता है ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल। एक भी क्या अब इसमें क्या है, एक तो बड़ा सब स्टेट हो गया, एक बड़ा गवर्नमेंट इसका बनेगा बिग गवर्नमेंट, जो कि इसको नेशनल गवर्नमेंट बोलेंगे, और एक इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होंगे
स्टेट्स होंगे, ये होगी आपका रीजनल गवर्नमेंट। ओके, जैसे कि इंडिया है एज ए स्टेट, है ना, ये इंडिया हो गया, इसका नेशनल गवर्नमेंट एक होगा और हर एक स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट होगा, है ना। बस तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिवेल्ड इन द यूएसए। फेडरल मतलब क्या हुआ, जिसका संविधान जो लिखा गया है और नेशनल इंटरेस्ट पे लिखा गया है, पूरी तरीके इस पे बेस्ड है, ज़्यादा पावर इसके पास है, वो होगा यूनिट फेडरल, है ना। वो सॉरी वो होगा यूनिटरी। फेडरल क्या होगा, स्टेट के बेस पे लिखा हुआ होगा। ओके, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिवेल्ड इन द यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राज़ील एंड सम अदर स्टेट। और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्ड इन द यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे एंड अदर स्टेट। ओके, देखिए यूनिटरी Constitution, on the other hand, provides for the concentration of power in the hands of the national government. यूनिटरी में नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर है, मतलब कि यूनिटरी है तो ये बड़ा वाला, है ना। और जैसे फेडरल लगा था, फेडरल मतलब पार्टी होता है ये वाला। तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इंडिया ना ही यूनिटरी है ना ही फेडरल है, ये क्वासी फेडरल है। ओके, अब बात है कि क्वासी फेडरल होता क्या है। ठीक है, तो क्वासी फेडरल क्या है ना, कि क्वासी फेडरल के देखेंगे हम तो इसमें ऐसे तो है तो वो यूनिटरी बेस्ड, ऐसे तो अगर काम चला स्टेट का अपना 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 कैसे है, फेडरल बेस पे काम करा, पर अगर ज़रूरत पड़ा कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इन दोनों के बीच, तो ये बॉस है, ये कमांड ले लेगा, है ना, प्रेसिडेंट रूल, है ना, एक कमांड ले लेगा। इसी को बोलते हैं कि हमारा है तो फेडरल, बट ज़रूरत पड़ने पे यूनिटरी भी हो जाता है। और इसको डिस्क्राइब क्वासी फेडरल कौन डिस्क्राइब किया था, केसी वेयर्स। अभी हम आगे जब आएंगे ना, जब यूनिटरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे 6 नंबर चैप्टर, वहाँ पे क्वासी फेडरल अच्छे से समझेंगे। उसके बाद प्रोसीजरल एंड प्रेस्क्रिप्टिव, इसमें देखिए ये एक तरीके का रिलेशन होता है टू द नेचर एंड पोजिशन पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, है ना। जो डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स द नेचर एंड पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है, उसी का डिफरेंस को ही बोलते हैं अलग अलग। जैसे कि देखिए प्रोक्लेमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिफाइंस द लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड सेट आउट द लीगल लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट। वहीं प्रिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा, assumes a broad consensus on common societal goals that public authorities must strive to achieve. ओके, इसमें एक तरीके का लिमिटेशन की बात हो रही है, लीगल एंड पॉलिटिकल लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। यहाँ पे कि एक अथॉरिटीज़ को एक तरीके से गोल दे दिया गया है। ओके, नाउ कम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब अगर मानिए एक कंट्री है, यहाँ पे संविधान है, रूल्स है जिसके थ्रू वहाँ पे गवर्न किया जा रहा है, तो क्या एक संविधान के होने से उस स्टेट उस कंट्री को हम बोल सकते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्या पता वहाँ पे कोई ऑटोक्रेट्स रूल कर रहा है, वहाँ पे मान लो कोई भी ऑटोक्रेट रूल कर रहे हैं, उन्होंने अपना संविधान बना रखा, पर वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है ना। ठीक है, जैसे देखिए अब ए कंट्री may have the constitution but not necessarily constitutionalism. For example, a country with a dictatorship where the dictator's word is law. डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटर्स का वर्ड ही लॉ है, तो इसको हम नहीं बोल सकते कि इट्स सेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, देन कम अनलिमिटेड पावर may leads to an authoritarian oppressive government with jeopardies the freedom of the people. Okay, then the concept of constitutionalism is that a polity governed by or under a constitution that ordains essential limited government and rule of law as opposed to arbitrary, despotic, authoritarian or totalitarian rule. देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट शुड नेसेसरली विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट संवैधानिक जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अगर उसकी डेमोक्रेटिक नहीं है, इसका मतलब आर्बिट्री पावर इन द हैंड्स ऑफ एनी इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन
if conferred by a constitutional document is negation of the concept of constitutionalism। ओके, अब किसी को आर्बिट्री पावर दे दिया गया तो वो एक तरह से नेगोशिएट ही हो गया ना, तो वो सही है नहीं है ना। Constitutionalism describes a political order in which the power of the government are limited. It is another name for the concept of limited, and for this reason it is also known as civilized government। Constitutional government को civilized government भी बोला जाता है। The real justification of the constitution finds place in having a limited government and of requiring those who govern to confirm laws and rules। अब ये हो गया मीनिंग्स क्या है दोनों का, संविधान और संवैधानिक सरकार। अब उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो अलग अलग स्कॉलर्स ने, 4-5 स्कॉलर्स ने उन्होंने इन दोनों को डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। तो फ्रेडरिक है, उन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोवाइड्स ए सिस्टम ऑफ इफेक्टिव रिस्ट्रेंट्स अपॉन गवर्नमेंट। इफेक्टिव रिस्ट्रेंट्स अपॉन गवर्नमेंट एक्शन। इट इज़ ए बॉडी ऑफ रूल इंश्योरिंग फेयर प्ले, thus rendering the government responsibilities। रॉकेक है, उन्होंने बोला है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स इसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट। सारे बोले लिमिटेड गवर्नमेंट तो होगा ही होगा, अगर वहाँ पर संवैधानिक सरकार है वो लिमिटेड गवर्नमेंट होना ही होना चाहिए, इनका भी वही कहना है। इट इज़ द एंटीथेसिस ऑफ गवर्नमेंट बाय द अनरिस्ट्रेन्ड विल बी रूलर्स regardless of the actual form of effectiveness of restraint। It assumes limitation on government as opposed to arbitrary government। एक VRS स्कॉलर से इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स समथिंग मोर देन ए गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इट मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल एज अपोज्ड और आर्बिट्री गवर्नमेंट। इट मीन्स गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट गवर्नमेंट लिमिटेड ओनली बाय द डिज़ायर एंड कैपेसिटी ऑफ दोज हू एक्सरसाइज पावर। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो जिसके हाथ में पावर है वही है वो ओनली बाय द डिज़ायर्स एंड कैपेसिटी, उसका जो डिज़ायर है उसका जो कैपेसिटी है नहीं। यहाँ पर नीचे रूल्स होना चाहिए इस तरीके अपोज टू। इट मीन्स गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, तो कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स पे होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसके अपने कैपेसिटी पे हो रहा हो। बाई एमा ए फॉर्म ऑफ, इन्होंने बोला है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन ओनली बी क्लासिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल व्हेन द रूल्स आर सब्जेक्टेड टू ए बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। किसी भी रूल्स को बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल के थ्रू डिफाइन किया होगा विच लिमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज द एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्री रूल्स। अब देखिए उसके बाद संविधान और संवैधानिक सरकार, इसका कुछ एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं जिसे जो दिया गया है लुइस हैनकिन के द्वारा। लुइस हैनकिन ये भी एक संवैधानिक स्कॉलर ही थे। इन्होंने क्या क्या बोला, देखिए पहला होना चाहिए पॉपुलर सॉवरेनिटी। ओके, 8 एलिमेंट्स दिए। दूसरा देखिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। थर्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस हमेशा होना चाहिए उसमें। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी को हमेशा इंडिपेंडेंट रखो। 6 सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, मिलिट्री को सिविलियन के पास कंट्रोल होना चाहिए। पुलिस गवर्न बाय लॉ एंड जुडिशल, अगर पुलिस है तो वो लॉ एंड जस्टिस के द्वारा वर्क करना चाहिए। और हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारे पास हमारे संविधान में मोस्ट फीचर, ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो एलिमेंट जो ये फीचर से बोल सकते हैं, फीचर्स या प्रिंसिपल, तो इसको कौन दिया था, लुइस हैनकिन ने दिया था। ओके, ये ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आते इसके, पर हाँ अगर मेंस में कुछ आए तो आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो हमने अभी ये देखा 1.3 थर्ड चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग देखा, संविधान का मीनिंग क्या होता है कुछ स्कॉलर्स के द्वारा। फिर उसके फंक्शंस को देखा, फंक्शन को कौन दिया था, एलियट वोल्मर ने दिया था 8 फंक्शंस से। उसके बाद हमने क्वालिटीज़ देखा कि संविधान की क्वालिटी क्या क्या होंगे, प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर टर्म में डिफाइन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सूटेबल फॉर द हिस्टोरिकल सोशल कल्चर होना चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवॉल्व हो रहा है या इनएक्ट है, रिटन है या अनरिटन है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। फिर उसके बाद फेडरल है या यूनिटरी है सारा। उसके बाद फिर प्रोसीजरल और प्रिस्क्रिप्टिव। उसके बाद हमने संविधान और संवैधानिक सरकार के बारे में देखा, उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इतना ही था। 20 मिनट का वीडियो हो गया, इसको देखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर का अपलोड करेंगे। वैसे ये चैप्टर प्रीलिम्स के लिए कम इम्पॉर्टेंट है, पर हाँ मेंस में अगर कुछ संविधान से क्वेश्चन आता है तो उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ के स्कॉलर्स को आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। कुछ
इसमें से डिफरेंशिएट डाल सकते हो। ओके, तो थैंक यू, देखते रहिए।